Hello students, today we will see chapter 2 of geography. In this chapter we will see physical features of India. In this chapter we have to mainly see physiographic divisions of India like the Himalayan mountains, the northern plains, the Peninsula Plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. In this we will see with the help of a map also that what are the physical features of India. Like this deep brown color represents a mountain wall of north, that is Himalayan ranges. Just in south of that, this light color, this is northern plains from Punjab, Haryana to Assam. This belt just below Himalayan ranges, this is northern plains of India, and below that this light brown color represents a peninsular plateau. Here we have Thar desert. It is included in Great Indian Desert, and here coastal areas. As you can see, it is written here, coastal areas. After that, here we have group of islands, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. So these are the 6 physiographic divisions of India. In this chapter, we have to see all the important features of these 6 physiographic divisions of India. Now, we will see few more things. A natural feature. Now first of all we have to see the meaning of physical features. What are physical features? A natural feature on the surface such as water, mountains, deserts and many other features which we can see on this earth surface, that is called physical features. And a number of processes such as weathering, erosion, deposition, these factors are responsible for the formation of these physical features. Many type of landforms, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म हमारे यहाँ मिलते हैं. वो बनते कैसे हैं? वो बनने के पीछे ये ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग, इरोजन, रिवर वाटर, विंड्स, ग्लेशियर्स, ये एक जगह से पार्टिकल्स उठाते हैं और दूसरी जगह वो डिपॉजिट करते हैं. ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है और उस कारण से क्या होता है, नए नए तरह के लैंडफॉर्म हमारे यहाँ अर्थ सरफेस पे बनते रहते हैं, जिसे हम फिजिकल फीचर्स ही कहते हैं. आफ्टर दिस theory of tectonic plates, this is also responsible for the formation of different type of landforms. Actually the crust, the upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. So first of all, let us understand what is this plate means. With the help of this map, we can see the major plates. Here these are the plate boundaries. मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, एक सिंपल वर्ड समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्लेट्स का मतलब ये पूरा जो अर्थ सरफेस है वो 7 मेजर पार्ट्स में बटा हुआ है और हर एक पार्ट को हम एक प्लेट कहते हैं. अब इससे लैंडफॉर्म कैसे बनती है या ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑन दिस अर्थ सरफेस. एक्चुअली ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करते रहते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इनका स्लो मूवमेंट हमेशा चलता रहता है और फिर क्या होता है, ये जो बॉर्डर लाइन है इनकी, वहाँ पे डिफरेंट प्लेट्स टकराती रहती है और टकराने से क्या होता है, वहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होते हैं, उससे भी लैंडफॉर्म बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, फोल्डिंग बनते हैं, फॉल्टिंग बनते हैं. सो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग आर 2 मेजर लैंडफॉर्म्स which are mainly caused due to plate tectonic. So ये एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण. अब हम यहाँ देखते हैं कि जो प्लेट्स हैं जो हमने अभी देखी वर्ल्ड में 7 मेजर प्लेट्स, वो मूव कैसे कैसे करते हैं. There are 3 major types of movements due to which our 3 different ways of movements जिसके कारण लैंडफॉर्म्स बनते हैं. ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री के सारे. ये प्लेट्स जैसे 2 प्लेट्स हैं, ये सपोज ये 2 प्लेट्स हैं,
ये दो प्लेट्स हैं, यदि ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये उसमें डायरेक्शन, प्लेट्स आर मूविंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, तो वो क्या है, कन्वर्जिंग प्लेट्स। और इसके कारण क्या होता है, फोल्ड्स बनते हैं। जैसे ये प्लेट एक है, इसमें दोनों तरफ से प्रेशर आया, तो क्या हुआ, नीचे तो सॉलिड है, तो क्या होगा, ये इस तरह से ये फॉर्म्स, फोल्डिंग बनेंगी, और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन लाइक दिस, जब प्रेशर हमारे दोनों तरफ से आ रहा है। और इसका उल्टा जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, डाइवर्जिंग बाउंड्री के सहारे, यानी कि ये दो प्लेट्स हैं जुड़ी हुई हैं, बीच में आप इसका बॉर्डर देख रहे हैं, और ये अलग अलग मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। पहले ऐसे थे और नाउ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हुआ, बीच में गैप हो गया। ये गैप क्या है, फॉल्टिंग। तो फोल्डिंग और फॉल्टिंग ये दो एक फीचर्स हैं जो कि इन प्लेट्स के दो तरह के मूवमेंट के कारण बनते हैं। इसके अलावा एक और तीसरा मूवमेंट है, उसमें प्लेट्स ऊपर नीचे की तरफ, अप एंड डाउन, इस तरह से वो मूव करते हैं, जो कि हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के सहारे कहते हैं। सो ये प्लेट्स के अलग अलग तरह के मूवमेंट हैं, जिसके कारण अर्थ पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। आफ्टर दैट हियर यू कैन सी दिस इज लैंड सरफेस, उसको फ्लैट दिखाया गया, ये हमारा सरफेस अर्थ क्रस्ट है। जब प्रेशर बनता है, जैसे अभी मैंने बुक की हेल्प से दिखाया था कि फोल्ड्स बनते हैं, वो इस तरह के फोल्ड बनते हैं। अब ये एक माउंटेन के जैसा हो गया बीच में, तो ये फोल्ड है, और इसका जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, और जो लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड सिंक्लाइन। तो ये एक एग्जांपल है फोल्ड का। जो हिमालयन रेंजेस हैं वो इसी तरह के फोल्ड माउंटेन्स हैं, उसे हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि वो रिसेंटली फॉर्म हुआ है। यहाँ रिसेंटली मतलब ये नहीं कि 2-4 साल पहले हुआ है, वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स है। लेकिन जब हम नेचर की एज के हिसाब से देखते हैं तो वो हमें यंग महसूस होता है, क्योंकि जो दूसरे लैंडफॉर्म्स हैं उससे वो रिसेंट है। तो वो है यंग फोल्डेड माउंटेन्स, जो कि इस तरह के मूवमेंट से बने हैं। Then here also with the help of this diagram we can understand fault. जैसे यहाँ पे ये पहले ये फ्लैट था, ये सारा ग्रीन कलर एक बराबर था, लेकिन ये क्रैक्स हुए या गैप हुआ, और वो वहाँ मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, और वहाँ पे क्या बन गया, फॉल्ट। और उस फॉल्ट के सहारे ज़मीन कहीं ऊपर चली गई और कहीं नीचे आ गई, तो इस तरह से ये अलग अलग लैंडफॉर्म बन गए। तो ये भी एक लैंडफॉर्म फॉर्मेशन का तरीका है। उसके बाद ये डिस्टिंग्विश, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्टिंग्विश बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, जो कि कैसे बनते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो हमने अभी देखा। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक मूवमेंट्स, प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो है डाइवर्जिंग, और यदि सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो है कन्वर्जिंग, जो कि हमने अभी बुक्स की सहायता से भी देखा। देन आफ्टर दैट वी विल सी नेक्स्ट वन, दिस इज पेंजिया। जब सारे जो हमारे 7 मेन कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो सारे जब मिले हुए थे, ज्वाइंट थे, जैसा भी हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं वैसा नहीं था, वो सारे मिले हुए थे, तो इस तरह का शेप दिखता था, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। अब हम और आगे इससे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि गोंडवाना लैंड, आपकी बुक में एक टर्म दिया हुआ है गोंडवाना लैंड। अब ये वर्ल्ड के मैप में जो पेंजिया था उसमें गोंडवाना लैंड कहाँ था, ये उसका सदर्न पार्ट यदि हम देखें तो वो गोंडवाना लैंड है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड इट इज द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, जो मैंने अभी पेंजिया दिखाया आपको। और उसमें दो चीज़ें हैं, एक है पेंजिया अंगारा लैंड, और दूसरा जो है वो है गोंडवाना लैंड। जो सदर्न पार्ट है, जो नीचे का हिस्सा है, वो है गोंडवाना लैंड, और जो उसके नॉर्दर्न पार्ट है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, आप इस मैप में देख सकते हैं कि एशिया का मेनली पार्ट दिखाया गया है, तो वो नॉर्दर्न पार्ट दिखाया गया है।